Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Economics. Today video we are going to continue with the chapter name Consumer Equilibrium in one commodity case. As we have already discussed about consumer behavior, we have discussed total utility, marginal utility. We have also discussed the law of diminishing marginal utility. So these all areas, all aspect we have covered. Now what we are going to discuss, how consumer get its equilibrium, because our main topic covering here, the unit name is consumer's equilibrium. So here we need to strike now equilibrium of the consumer. For this we are beginning with single commodity case, because to strike consumer equilibrium using utility approach or cardinal approach, we need to use ओनली सिंगल कमोडिटी फर्स्ट. इट मीन्स हम अपने कंज्यूमर को एक ही कमोडिटी दे रहे हैं खाने के लिए, एक ही कमोडिटी दे रहे हैं यूज करने के लिए, उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा. देन ओनली we can strike our equilibrium. If consumer get other option, no equilibrium will be settled then. For this reason, in this topic we will cover only single commodity case, and in next video we will continue with the same topic, consumer's equilibrium, but now then two commodity. तो पहले एक कमोडिटी के साथ कैसा बिहेवियर है ये समझेंगे, फिर दो कमोडिटी के साथ कैसा बिहेवियर है ये समझेंगे, एंड देन आफ्टर द ऑर्डिनल अप्रोच, दैट इज आईसी, सो दैट वी कैन कम टू नो हाउ consumer indifferent between different options or different ranking system. So this is what we are going to discuss today. Before I start, those who are new on my channel, I please tell you all, do like, share and subscribe my channel, and also press on bell icon to get time to time notification. So here we'll begin. In the topic, what we are going to cover is utility approach in one commodity case. You just write down the heading first. It is very important to know what we are going to do. So we are going to discuss consumer's equilibrium utility approach in one commodity case. Unit 2, class 11th. Now first of all, we need to understand the meaning. What is consumer equilibrium? Equilibrium whenever comes, we compare with that तराजू. आपको पता है ना तराजू तो बैलेंस, राइट? तो जब हम बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस किसका? कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च कैसे कर रहा है, और जो जिस पे खर्च कर रहा है उससे उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो उसके सेटिस्फेक्शन और एक्सपेंडिचर के बीच का बैलेंस कहलाता है इक्विलिब्रियम. क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन. सो सेटिस्फेक्शन हेयर कंपेयर एज यूटिलिटी, और वो जो सेटिस्फेक्शन उसे गुड से मिल रहा है उस पे खर्च करी गई इनकम, इन दोनों के बीच का बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. अगर एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तराजू में यही होता है ना, वी कैन नॉट बाय इट इन अ सेम वे. अगर कंज्यूमर का खर्चा ज्यादा सेटिस्फेक्शन कम, नो इक्विलिब्रियम, और अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा खर्चा कम, नो इक्विलिब्रियम. सो वी नीड टू बैलेंस इट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हियर इट इज. It refers to the situation when consumer gets maximum satisfaction, highest satisfaction, where he says, जहां पे आके वो रुकेगा और कहेगा बस बहुत हो गया, इतने में इससे बढ़िया और कुछ नहीं मिल सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज गिवन इनकम. अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ दो पैरामीटर ही हैं, एक कंज्यूमर की इनकम, दूसरा उसका सेटिस्फैक्शन. इन दोनों के बीच का बैलेंस, इस दोनों के बीच की इक्विलिब्रियम. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. तो यहाँ यूटिलिटी आ गई, ये उसकी इनकम आ गई. अब इसमें हम बाउंडेशन डाल रहे हैं. क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कोई भी थ्योरी हो इकोनॉमिक्स में, अगर हम उसे टेस्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, we need to have some assumption on the basis of which we can experiment anything in our practical life. So here we have some assumptions. Before it, you need to understand has no tendency. Who has no tendency? Consumer has no tendency to make any change. It means consumer अपने behavior में कोई change नहीं करेगा. जो गुड्स वो ले रहा है वो कंसिस्टेंट लेगा, और उस गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसके साइज में, ना उसकी पैकेजिंग में, ना उसकी किसी भी फॉर्मेट में. प्लस जो प्राइस है गुड की वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्राइस के साथ ही हमारा बिहेवियर बदल जाता है. सो दीज ऑल शुड रिमेन फिक्स्ड एंड सेम. It should not change. So this is how we are saying no tendency to make any changes. Now the assumption. Consumer should be rational. I told you already, consumer should be rational, smart enough. He should think
differently, but he should have that notion कि the what he is going to consume should be perfect. It means consumer का जो behavior है वो एक abnormal नहीं होना चाहिए, वो consumer mental disorder नहीं होना चाहिए. Reason is क्योंकि हम जब किसी poor पे या mentally disorder person पे test करेंगे तो उनका behavior totally अलग होगा एक normal consumer से. For this reason, we need to find a consumer who is rational, fit physically, mentally for everything, right? Second is utility is cardinally measure, means we have to measure our satisfaction in numbers. So what we are doing here, we are going to test our satisfaction, our utility in cardinal number that I told you already in my previous video. 1, 2, 3, 4. Like this we will measure our satisfaction. Next is consumer income is given. It means consumer income is static, means income जो उसके पास है उसी को यूज करना है. If he is going to change any of his income, behavior will change. So whatever income is there, that is required to test the consumer behavior or equilibrium. Price is given and constant. That I told you, there is no urge to change the situation. Whatever is given should be static, should be constant. There will not be any change in the given requirement, income as well as price. So this is how we are going to fix the consumer boundary so that we can easily test over its equilibrium. Now what are the factors involved in equilibrium? Means when we are going to conduct this equilibrium, क्या क्या चीजें आने वाली हैं और उसके बेसिस पे ही बनेगा फॉर्मूला. So here we have price of the commodity. Equilibrium में हमेशा ध्यान रखो कंज्यूमर जो भी खरीद रहा है उसको वो मार्केट प्राइस से ही लेगा. तो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट है प्राइस का. सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. अब उस प्राइस से जो वो खरीद के लाया है उसको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी डिराइव होनी है वो इसका सेकेंड फैक्टर है इस इक्विलिब्रियम को चेक करने का. इसका मतलब जो भी वो खरीद के लाया उसमें 1, 2, 3 लेवल तक जाते जाते क्या चेंजेस आए उसके बिहेवियर में, वो हम यहाँ पर लेना, उसको हमें यहाँ पर लेना बहुत जरूरी. और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में, राइट हियर. एंड द थर्ड वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर की इनकम खर्च हो रही है तो उसके इनकम से डिराइव होने वाला सेटिस्फेक्शन, मीन्स जो एक्सपेंडिचर वो कर रहा है, जो मनी वो यूज कर रहा है, उस मनी के अगेंस्ट आने वाला सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इसका एक डेफिनेशन है वो जरूर कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. इट इज द रूपी वर्थ सेटिस्फेक्शन. इट इज द रूपी वर्थ सेटिस्फेक्शन. अब कैसे समझना, सुनो. लाइक आपने जब मार्केट में कुछ कमोडिटी खरीदी, लाइक आप कुछ ड्रेस लेने गए, 1000 रुपए की ड्रेस तो बहुत सस्ती मिल गई, बहुत अच्छी मिल गई, तो ये क्या है, मनी की वैल्यू. सस्ती मिल गई, वैल्यू खत्म. या आपको महंगी मिली, वैल्यू बढ़ गई. लेकिन जब आपको बराबर मिली, 1000 रुपए में क्या सही चीज मिली है, ये स्टेटमेंट जो आता है ना हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे कि वैल्यू इज गुड, यानी 1000 के बदले जो हम लेकर आए हैं वो सेटिस्फैक्टरी है. तो दिस स्टेटमेंट वो रुपी का है, 1000 रुपए यानी आपने जो मनी खर्च किया, क्योंकि आपने अपने सेटिस्फेक्शन को किससे कंपेयर किया, रुपए से. और आएगा कैसे सेटिस्फेक्शन, हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन जनरली कैसे निकलता है, रुपी से कंपेयर करते हैं. तो उस रुपी से, यानी जो मनी है आपके पास 2000, 3000, पर उसमें से जो रुपी आप देकर के आ गए अगेंस्ट योर परचेज, उससे आपका सेटिस्फेक्शन कैसा है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड रुपी वर्थ सेटिस्फेक्शन, MUM, right, that a consumer expect to get. So it is all over we can say a worth of money. इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे वर्थ ऑफ मनी. आप चाहो तो उसको लिख लो. इट इज इन शॉर्ट कॉल्ड वर्थ ऑफ मनी. मनी की वैल्यू in terms of consumers satisfaction is called MUM. इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए इसको लिख लेना. अब इसी तीनों फैक्टर्स से बना हमारा फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला MUX upon PX equals to MUM, means ratio between marginal utility of X commodity and प्राइस ऑफ X कमोडिटी. मीन्स जो कमोडिटी हमने X मानी है, सिंगल कमोडिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो हर लेवल पे क्या होगा, डिक्लाइन. ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि MU, मार्जिनल यूटिलिटी, ऑलवेज डिक्लाइन विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ सेम कमोडिटी. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा
उससे मिलने वाला, उस गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा ही होगा, ये हम कर चुके हैं, राइट। सो दिस विल बी अप्लाइड हियर। MUX विल डेफिनेटली हैव अ रेशियो विथ प्राइस ऑफ X विच शुड बी इक्वल्स टू वर्थ ऑफ मनी, मनी की वर्थ के बराबर होना चाहिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और बनाया गया, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला, MUX अपॉन MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इन दोनों के बीच का रेशियो विच शुड बी इक्वल्स टू इट्स प्राइस। सो दिस इज हाउ विल मेजर एंड जनरली वी अज्यूम MUM एज 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि MUM हम जनरली 1 अज्यूम करते हैं, यानी 100% मीन्स परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स 1, तो 1 में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम टेस्ट करेंगे अपने इक्विलिब्रियम को। तो क्या समझ में आया जो 3-4 आइटम्स इससे निकल के आ रहे हैं? एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन फिक्स रहेगी, मेन चीज। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ऑलवेज डिक्लाइन, ये हमेशा डिक्लाइन ही रहेगी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा ये डिक्लाइन ही होगी। वर्थ ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं परफेक्ट 1 के साथ, राइट। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये फिक्स रहेगा, फिक्स्ड, ये हमेशा डिक्लाइन ही होगा, राइट, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी कि 1, राइट। तो इन चीजों के बेसिस पे ही हम इसको आगे चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से सारा लिख लो आप, उसके बाद हम चलते हैं इसकी टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। सो हियर वी हैव नाउ द टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट। अब हमें इसको दिखाना है। फिर मैंने बताया था ना कि इकोनॉमिक्स इज सो इंटरेस्टिंग, we can develop the interest using mathematical scenario. So here we have some mathematical scenario through which we can understand the consumer equilibrium. First of all we have to determine few things. Price of good X is given, that is 4, यानी प्राइस जो है गुड X की वो हमेशा 4 है, चेंज नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले बताया, assumption है प्राइस रिमेन सेम, तो प्राइस विल रिमेन सेम। MUM like I told you always 1, we assume always 1। अब क्या है यहाँ पर? कमोडिटी X। सपोज हम कमोडिटी X ले लेते हैं आइसक्रीम, राइट, और आइसक्रीम की प्राइस है 4 रुपीज, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो कमोडिटी X जो है वो कह रहा है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी आइसक्रीम की? 7। यानी मैंने कंज्यूमर को बिठा दिया, उसके सामने टेबल लगा दी और 7 कप्स रख दिए यूज कंज्यूम करने के लिए आइसक्रीम के, राइट। ईच कप प्राइस एट 4, सभी कप की प्राइस सेम है, नो चेंज इन एनी प्राइस। ऐसा नहीं है कि एक चॉकलेट आइसक्रीम है, एक वनीला है, एक स्ट्रॉबेरी है, एक अलग है। सारे आइसक्रीम एक ही फ्लेवर के, लाइक हमने ले लिए वनीला फ्लेवर, सारे आइसक्रीम वनीला फ्लेवर के, राइट, और सभी की प्राइस सेम है, यानी हमें सेम कमोडिटी आइडल रखनी है, कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेम कमोडिटी, सेम क्वांटिटी, सेम फॉर्मेट, राइट। तो प्राइस फिक्स हो गई, यूनिट फिक्स हो गई। अब हर लेवल पर जो कंज्यूमर का बिहेवियर बदलेगा विथ ईच एंड एवरी कंजम्पशन, वो कैसा होगा? हमेशा डिक्लाइन होगा, यानी यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइन। सो दिस इज वी आर अज्यूमिंग हियर कि जैसे जैसे वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कंज्यूम करने लगेगा, उसकी यूटिलिटी फॉल होने लगेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 3 आइटम हमको मिल गए। अब क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो सिंगल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है, दैट इज MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUM। ये हमें चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, और इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या था हमारा? MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। तो इसको हमें जस्टिफाई करना है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए हमने एक एडिशनल कॉलम बनाया जिसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? MUX अपॉन PX, फॉर्मूले की पहली डिमांड, जो किसके बराबर होनी चाहिए? MUM। कितना है MUM? 1। So here we'll divide it. Now first MUX, first level of unit पे MUX कितना है? 12। 12 by 4 कितना आंसर आना चाहिए 12 by 4 का? जल्दी से कैलकुलेट करो, 3, राइट। So 12 by 4 means 3। नेक्स्ट है 10, 10 by 4, तो 10 by 4 करते ही क्या आ जाएगा? 2.5। So next MUX कितना आ गया? 2.5। 8 by 4, 8 by 4 करा तो क्या रिजल्ट आया? 2। नेक्स्ट किया 6 by 4, तो 6 by 4 करते ही क्या रिजल्ट आ गया? 1. अगेन वी हैव रिमेन 2, सो इट 1.5। फिर जैसे ये किया तो क्या आ गया? 4/4 इक्वल्स टू 1। एंड लास्ट व्हेन यू हैव गॉन फॉर दिस, इट इज 2/4 इक्वल्स टू 0.5 एंड दिस विल बी एनीथिंग डिवाइडेड फॉर 0 बिकम 0। तो इस तरह से हमारे रेशियो निकल के आ गए, किसके? MUX अपॉन PX के, यानी इसके रेशियो।
अब अगर हम कंपेयर करें तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां तक और यहां तक में बहुत कुछ बदलने वाला है। देखो कैसे, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, इजंट इट? क्योंकि MUM क्या है हमारा 1, राइट? तो MUX अपॉन PX का रेशियो 3 इज ग्रेटर देन 1. You can see 2.5 is greater than 1, 2 is greater than 1, 1.5 is greater than 1. इसका मतलब यहाँ पे रुपी की वैल्यू है ही नहीं। कंज्यूमर को सामान सस्ता मिल रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन हाई है, और रुपी की वैल्यू कम हो गई, डिसबैलेंस। बताया था ना मैंने, कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नीचे चला गया और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई है। इसका मतलब डिसबैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आया। अब जैसे उसने 5th यूनिट कंज्यूम करी, लुक एट हियर, जैसे उसने 5th यूनिट कंज्यूम करी, क्या हुआ? रेशियो मैच कर गया, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, जो हमारा एक्चुअली रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की। अब आप देखिए 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, राइट? इसका मतलब जो उसने खर्च किया इनकम और जो प्रोडक्ट खरीदी वो दोनों क्या हो गए? बैलेंस, राइट? दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया बैलेंस, यानी इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसके नीचे देखें तो क्या हो रहा है? MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM। अब इस कंडीशन में क्या हो गया? सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, बिफोर इट कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा था? उसकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा, मतलब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, रुपी की वैल्यू कम। अब इसके अपोजिट में क्या हो गया यहाँ करके कि रुपीस की वैल्यू बढ़ गई, यानी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको प्राइस पे करने से वो हो गया लो, क्योंकि यूटिलिटी पूरी फॉल हो गई यहाँ, और प्राइस के रेशियो में उसका सेटिस्फेक्शन लो हो गया, रुपी की वैल्यू बढ़ गई। ये देखो डिसइक्विलिब्रियम। सो दिस डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड हियर आल्सो। सो वी हैव द बैलेंस ऑफ दिस इन दिस लेवल। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर्स satisfaction. Now the same situation we will understand through this diagram. इस डायग्राम को भी हमने इसी टेबल के बेसिस पे बनाया है, तो एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो डरने की जरूरत नहीं है, वी कैन इजीली ड्रॉ इट। क्या करा हमने? y एक्सिस पे यूनिट दिखाई, क्योंकि जो भी रिलेशन आ रहा है वो यूनिट से आ रहा है, तो हमने सॉरी x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हमने सारी यूनिट लिख दी जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और y यूनिट पे हमने MUX लिख दिया और प्राइस लिख दी। सो MUX एंड प्राइस दोनों यहाँ पर है। प्राइस कैसी है? फिक्स्ड है, यू कैन सी हियर, ये 4 है हमारा, 4 पे प्राइस फिक्स्ड है। जितनी भी यूनिट लो सब पे हमें प्राइस सेम ही पे करनी है, राइट? अब जो यूटिलिटी है दैट इज आई टोल्ड यू ऑलवेज डिक्लाइन, सो इट इज डिक्लाइनिंग लाइक दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये दोनों जहां पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मीन्स ये पॉइंट कौन सा? 5th लेवल ऑफ आउटपुट। तो 5th लेवल ऑफ आउटपुट पे आकर कंज्यूमर को क्या मिल गया? इक्विलिब्रियम। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM है। इसका अगर हम ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप इसको इधर, MUX कितना है? 4 और MUM 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो कितना आ रहा है? 4। सो दिस इज हाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज ऑल्सो जस्टिफाइड। सो दिस पॉइंट इज कंसिडर एज इक्विलिब्रियम। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि यूटिलिटी कर्व ऊपर है, प्राइस कर्व नीचे है, यानी जो पेमेंट वो कर रहा है गुड को खरीदने से, उससे हाई उसका क्या है? सेटिस्फेक्शन। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहलाएगा ये पोर्शन? कंज्यूमर सरप्लस। याद रखना क्यों सरप्लस आया? क्योंकि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM। जो पेमेंट वो कर रहा है उसके बदले उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसलिए ये कंज्यूमर सरप्लस एरिया हो गया, और यहाँ पे MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM। और अगर हम यहाँ पे टेस्ट करें तो क्या दिखाई दे रहा है? दिस सेक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर लॉस। क्यों कंज्यूमर लॉस? क्योंकि यहाँ पे उसको प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है, बट उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं है। यू कैन सी हियर, price payment is more but satisfaction is less, because of which he is getting loss in this situation if he is going to consume 6th and 7th unit of the commodity, while before it, while he was consuming 1 2 3 4 commodity, what was happened? Satisfaction was more than the price payment, because of which this situation occurs. So this is consumer surplus, और यहाँ पे उसको हो गया loss, and this is why, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी situation? MUX upon PX is less than MUM. This is why this situation occurs. So in all short, this is how consumer gets its
इक्विलिब्रियम। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, एक्सप्लेन करी है, इसको अगर आप पैराग्राफ में लिख दें तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट राइटिंग इन अ पैराग्राफ ऑफ दिस डायग्राम एंड दिस टेबल इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जो भी आप डायग्राम और टेबल बना रहे हो उसकी बारे में जैसे जैसे आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, जैसे जैसे आप बना रहे हो, लिखते चले जाओ। जैसे जैसे लिखते जाओगे अपने आप वो पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन फ्रेम होती चली जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट दी आंसर। आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस क्या होता है, किस तरह से अचीव होता है। एक ही गुड है, प्राइस फिक्स है, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, उसे इसी आइडल लिस्ट पे खरीदनी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होगी, और फिर जहां आके दोनों मिल गए, यूटिलिटी फॉल एंड प्राइस फिक्स, दो जहां मिल गए, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंगली वेयर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कहां लिखेंगे आप, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक एट 5th यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, और एक्स कमोडिटी है क्या, आइसक्रीम। तो आपका कंप्लीट आंसर कब बना, व्हेन यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट दैट कंज्यूमर गेट हिट्स इक्विलिब्रियम व्हाइल ही कंज्यूम टिल 5th यूनिट, एट लेवल ऑफ 5th यूनिट he is in equilibrium. Before it he is getting surplus, after it he is getting loss because of this disequilibrium. So his equilibrium is here. So you just draw the table and the diagram and you will be able to understand everything combinedly, and just write down in the same way so that you can complete your answer. So write it fast. I hope you all have understood the today's session, that was consumer equilibrium in single commodity case. Now in the next video I'll complete with consumer equilibrium utility approach in 2 commodity case. So those who have not written that, drawn that, you just pause the video and draw it. That's all for today. We'll meet in next video. Bye bye.